Hello children, how are you all? Staying home in this time of medical stigma, these crises, corona days. Yes, you stay home and thus be safe. Study भी चल रही है ना, बड़ा difficult time है for India, for all of us. But one is always there, our Prime Minister, who is coming again and again with his optimistic addresses to the nation. He is coming with instructions what to do to be hopeful to come out of this stigma. क्योंकि difficult time क्या है? It is part of life. Life, children, which is not a bed full of roses. Difficult times will always be there. But what matters most is how you take it. आप कैसे face करते हैं. So let us not lose hope. I remember one scholar who said, in times like these, let us not despair. For to despair is to desert India. जीतना है हमें, बाहर निकलना है इससे. क्या करें हम ऐसा? घर पर स्टडी करें हम उन महान कवियों को भी. मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कृतियों को पढ़िए. डस्ट ऑफ स्नो को पढ़िए. 10th class students, yes, we are going to discuss today this. We are going to enjoy this poem, Dust of Snow, in time like these, which is very important. An inspiring one for all of us. Written by Robert Frost. Yes, you have studied already Robert Frost in your 9th class. Romantic poet, American poet, 1874, San Francisco born. Great poet, nature poet, romantic poet. Romantic वो movies वाला romantic नहीं. कौन होते हैं romantic poet? Poet who has love for nature. Poet who appreciates beauty of nature in his or her poems. तो ऐसे ही ये कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी हम आज बात करने वाले हैं. इनकी रिटन डस्ट ऑफ स्नो आपकी पोइम 1 फर्स्ट फ्लाइट से 10th क्लास हम स्टडी करने वाले हैं. क्योंकि ये पोइट जो हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं. दे लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. व्हाट वी डू, वी कंडेम अदर्स, बट दे अप्रिशिएट अदर्स. दे डोंट लुक एट द ड्रॉबैक्स ऑफ अदर्स. They motivate, they inspire through such creations. Beautiful poem. ये वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, नेचर पोइट हैं. छोटी छोटी कविता लिखते हैं. 8 लाइन की पोइम है. नेक्स्ट वन इज फायर एंड आइस, 9 लाइन्स की है. बट हैविंग ग्रेट आइडिया इन इट. Hence NCERT has included this in your syllabus. As a crow shook down snow on him, he created this poem. One day he was passing through a forest. He saw 2 ways where to go, which way he should travel, and he chose to the way less traveled by. The road not taken आ गई. आपने स्टडी भी किया 9th में. Going by his car from city to rural area, he saw roadside stand and wrote roadside stand. You will study in 12th class. Going through the woods in the forest, उसने देखा beauty and came out stopping by woods on a snowy evening. Nature poet. So this one is for you. Dust of snow. ये मत देखिए 8 लाइन की है. सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर. हैविंग अ ग्रेट मैसेज इन इट फॉर यू चिल्ड्रन. ये मत देखिए छोटी है. नेक्स्ट जो है फायर एंड आइस, उसमें एक ही लाइन इंक्लूड हुई है. इक्वली इंपॉर्टेंट दीज डे सिनेरियो. स्टडी in time like these. We should study dust of snow and fire and ice. I am coming next with fire and ice. So let me have model recitation at once. The way a crow shook down on me,
द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। देखिए, रिदम इज देयर, राइम इज देयर, म्यूजिक इज देयर, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued। ग्रेट। देखिए आप, स्मॉल वन बट ग्रेट, बिग वन, ए बिग स्मॉल। थीम देखिए क्या कहता है कि एक क्रो ने, द वे अ क्रो, कौन? क्रो। सिंबल देखिए आप, क्रो लिया उसने, पैरट नहीं लिया, उसने पीकॉक भी नहीं लिया, उन्हें स्पैरो भी नहीं ली। पंख तो कोई भी फड़फड़ा सकता था। बिकॉज ही वॉज इन सैड मूड एंड क्रो सिंबलाइजेज हियर दिस सैडनेस, दिस dreariness, this gloominess of poet। shook down on me the dust of snow। वो भी ब्रांच पर बैठा है, नीचे पोइट खड़ा है। क्रो ने शूक डाउन किया और ओस की बूंदें, बर्फ़ की बूंदें उसके ऊपर गिरी। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक देखिए आप यहाँ पर, एक पॉइजनस ट्री होता है, धतूरे का पेड़। उसने और कोई पेड़ नहीं लिया, मैंगो ट्री नहीं लिया। हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो, सो टू सिंबल्स, क्रो एंड हेमलॉक, बोथ आर सिंबल ऑफ डेथ। लिटरेचर में क्रो को, हेमलॉक ट्री को सैडनेस और डेथ का सिंबल माना गया है। तो यहां पर आप फर्स्ट स्ट्रैंजा में देख रहे हैं, रिदम इज देयर, राइम इज देयर, ए सैडनेस इज देयर, अ डिस्पेयर इज देयर, पोइट इज इन सैड मूड, ही इज ड्रीरी। क्या हुआ? कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कुछ फिर बदल गया है। सेकंड में देखो क्या हुआ है, माई हार्ट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसके पंख फड़फड़ाने से और मेरे ऊपर ओस की बूंदें गिरा देने से मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued, जिससे मुझे रिग्रेट हो रहा था कि ये मेरा सारा दिन कैसे जा रहा है, मेरी लाइफ कैसे जा रही है, निराशा भरी। आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती होगी, आपको लगता है वेयर यू शुड गो, और ऐसा हुआ होगा, यू केम टू योर टीचर, यू वेंट टू योर पेरेंट्स, और उन्होंने 1 मिनट में आपको उस डिस्पेयर से, उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से बाहर निकाल दिया। सेम इज हियर, हु इज डूइंग फॉर द पोइट हियर, हु इज हेल्पिंग हिम? क्रो। देखिए आप, नेचर भी किस रूप में आपकी हेल्प करने आ जाए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मदद को आया क्रो। हेल्प कौन कर रहा है? टू कम आउट ऑफ दैट स्टिग्मा, क्रो इज हेल्पिंग हिम। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की यहां बात हो रही है एक तरह से। एवरी क्लाउड, क्रो काला है, काले को हम बैड ओमन मान लेते हैं, काली बिल्ली जहां रास्ता काट जाए हम जाते नहीं हैं। ये सब छोड़ दीजिए सोचना, सुपरस्टिशंस नो मोर। नेचर का कुछ नहीं पता, नेचर के पास जाते हैं ना हम, कहीं घूम आओ जाओ, तो नेचर केम टू आवर रेस्क्यू, पहले भी आई है एंड इट विल कम टू कम आउट ऑफ दिस कोरोना स्टिग्मा ऑल्सो। वट वी शुड थिंक? वी शुड थिंक नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन इज, देयर इज ऑलवेज सम गुड एस्पेक्ट इन इट to come out of this sadness, despair, this depression, this hard time। टाइटल भी देखा आपने, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्टिंग करते हैं ना, डस्ट ऑफ स्नो, जैसे किसी ने झाड़ दिया, झाड़ा, डस्ट ऑफ स्नो। ब्यूटीफुल टाइटल विद अ ब्यूटीफुल मैसेज विद जस्ट 8 लाइन्स। और अगर हम बात करें इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो आप देख रहे हैं मैंने क्रो को ब्राउन किया है और स्नो को ब्राउन किया है। क्रो, स्नो, यहाँ पर बात हो रही है राइम स्कीम की। मी, ट्री, तो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स एंड सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स एक यूनिट जुड़ी हुई हैं आपस में। म्यूजिक इज देयर, राइम इज देयर। सो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए आप, ए बी राइम स्कीम जा रही है। एसोनेंस इज देयर, सेकंड लाइन में देखिए आप, डबल ओ शूक में, डाउन में ओ और ऑन, तो ये एसोनेंस है। जहां पर क्या हो रहा है, रेपिटिशन ऑफ वावल साउंड अगेन एंड अगेन हो रहा है, और वो नोटिसेबल हमें लग रहा है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, ओ ओ ओ ओ, तो एसोनेंस, वावल जहां इन्वॉल्व हो रहा है अगेन एंड अगेन, नोटिसेबल है जो।
और फिगर ऑफ स्पीच की बात करें हम, एंजैममेंट इज देयर। आप देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। एक आइडिया है, फ्रेजेस हैं, चले आ रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, लाइन खत्म हो रही है पर वो चला आ रहा है, इसको हम एंजैममेंट कहते हैं। व्हेन थॉट इज नॉट एंडिंग विद द लाइन, इट इज गोइंग टू सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन। हम देखते हैं क्या सेकेंड स्टैंजे में भी जा रही है। सारी पोइम को आप देख लीजिए एक बार, कहीं सारी पोइम में तो नहीं जा रही, कहीं पंक्चुएशन ही नहीं है, देखिए आप। और हम बात करें सिंबल्स की, क्रो है, हेमलॉक है, ये प्रतीक हैं बैड ओमन के, डार्कनेस के, डिस्पेयर के, ग्लूमी डेज के। तो बड़ा अच्छा यूज़ किया है। फर्स्ट में तो कुछ हुआ, सेकंड में उसका असर हो रहा है। फर्स्ट में अगर सैडनेस था, यहाँ पर होप आ गई है। अब हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, हर्ट पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मूड रूड। यहाँ भी देखिए आप, राइम स्कीम इज देयर, स्टिल देयर। तो क्या बनेगा, अगर पहले में था ए बी, सेकंड स्टैंजे में क्या आ जाएगा, सी डी। यहाँ ए बी नहीं कहेंगे क्योंकि ए और बी से अलग हो रहा है, तो हम सी और डी देंगे इसको। तो पहले में अगर राइम स्कीम पूछी जाए ए बी और सेकंड में सी डी। आप देख रहे हैं हार्ट और पार्ट मैंने ब्राउन किया है, मूड और रूड मैंने ग्रीन किया है। मुझे रिग्रेट था, आपको भी रिग्रेट होगा अगर आपने अभी इस डिस्पेयर से बाहर ना आए, इस सैडनेस से बाहर ना आए। गो टू योर टीचर, गो टू योर पेरेंट्स, दे हैव सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन, उनसे बात कीजिए, डस्ट ऑफ स्नो पढ़िए। पोइट बाहर आ गया, आप भी आ सकते हैं। एनी डिफिकल्टी, आई बेट कि हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है। कोरोना से भी बाहर आना है ना, तो पॉजिटिव बहुत जरूरी है। यहां पर नहीं हावी होने देना वायरस को। इसलिए तो कह रहे हैं बार बार थाली बजाओ, लाइट जो है बालकनी में खड़े होके। ये क्या है, ताकि 130 करोड़ लोग इकट्ठे होके एक माहौल बने, पॉजिटिविटी बने। ये वही तरीके हैं चिल्ड्रन। तो हम आपके साथ हैं। अगर ये टफ टाइम आया है, हार्ड टाइम आया है, तो अच्छा टाइम भी आएगा। वो कहते हैं ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? नो, वी विल मैनेज, you will manage. So children, this was the poem Dust of Snow by Robert Frost. Let's do its question answers, those which are asked in your board exams frequently. ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, मार्च 2020 में ये सेट बी में आया था। Where was the poet standing and what happened to him there? पोइट कहाँ खड़ा था और वहाँ उसके साथ क्या हुआ? तो जैसा आपने देखा, पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ही वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। अ क्रो, क्या हुआ था वहाँ? ए क्रो विद स्नो ऑन इट्स विंग्स वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। द क्रो शूक इट्स बॉडी एंड स्नो फेल डाउन ऑन द पोइट, उसके ऊपर गिर गई। एंड विद दिस हिज हार्ट फिल्ड विद हैप्पीनेस, द क्रो हैड सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो सेट डी में पूछा गया था मार्च 2020 में हरियाणा में, कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, हाउ इज द पोइट्स मूड चेंज्ड? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स दिस पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल जो उसने वो गिराए, विच आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो गिरते हैं वही डस्ट ऑफ स्नो है। डस्टिंग करते हैं ना, डस्ट झाड़न, डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट्स मूड वॉज ड्रेरी, ही वॉज इन क्वांड्री, where to go, what to do. He was in despair. When a crow shook its body, the snow which was on its wings fell down on the poet. It filled poet's heart with happiness. It changed his mood. तो ये हुआ, उसका मूड इस तरह से चेंज हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये थी हमारी पोइम डस्ट ऑफ स्नो। If you still have any doubt, any query, feel free to ask me by going to comment section. I am coming with Fire and Ice, your second poem by the same poet Robert Frost. Hope you will join me there also. Till then, stay good, stay healthy. Bye bye. Thank you.